بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی آزادی مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے 2 مقدمات سے بری۔ سیشن کورٹ نے اسد عمر، علی محمد خان اور مراد سعید کو بھی بری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے بریت کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق فل کورٹ سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 13 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ گزشتہ سماعت پر جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں میں بانٹنے کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ مجھے جو پتا چلا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو پروموٹ کریں۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو پتا چلنا چاہیے، لوگوں کو آگاہی ہونی چاہیے کہ کیا غلطیاں ہم نے ماضی میں کی ہیں، تاکہ وہ سیکھیں کہ ہم یہ غلطیوں کا اعادہ نہ کریں، دوبارہ اعادہ نہ کریں۔ اب یہ فائنل پروڈکٹ ان تک نہیں، انہوں نے، یہ میری انفارمیشن ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا۔ کور کمیٹی نے اس کو اون اپ کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو پروموٹ کرنے کی ہدایات دی۔ ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کا انکشاف۔ پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، پی ٹی آئی کور کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ کو اون کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی چاہتے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے ماضی میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ لیگل کمیٹی کی رائے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا ہے یا نہیں۔ رؤف حسن کہتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہمارے کیسز میں نہ بیٹھیں کیونکہ ان کے آنے کے بعد ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ پی ٹی آئی نے ایٹمی ملک کی بنیادوں پر حملہ کیا۔ 9 مئی کے ملزمان کو سزا ہو جاتی تو یہ سلسلہ بند ہو جاتا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود کہتے ہیں سہولت کاروں کو دیکھنا ہوگا ان کی سہولت کاری سے ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے سبق نہ سیکھا تو ماضی کا قصہ۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو کوئی دیوار سے نہیں لگا رہا، وہ خود دیوار سے لگ رہے ہیں۔ ایک دن دیوار ان پر گر جائے گی۔ تحریک چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کسی کو حکومت پر اعتراض ہے تو عدالت جائے۔ 2018 میں ہمیں کہا جاتا تھا عدالتیں آزاد ہیں، وہاں جائیں۔ ہم بھی کہتے ہیں عدالتیں آزاد ہیں، آپ بھی وہاں جائیں۔ حمود الرحمان کمیشن ہے، نیٹ پہ ساری پچھلے کچھ 10-12 سال سے اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ۔ ہم نے ابھی بھی اس کے 2-3 چیپٹر جو ہیں وہ محفوظ کیا ہوا ہے، وہ پبلکلی آپ پاکستان میں ڈیبیٹ نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب جیل میں ٹویٹ کر سکتے ہیں، کیسے ٹویٹ کریں گے؟ وہاں تو فون نہیں چلتے۔ اگر انہوں نے کوئی قانون توڑا ہے ٹویٹ کر کے تو بالکل پروسیکیوٹ کریں۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ انٹرنیٹ پر 10-12 سال سے موجود ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے ٹویٹ کر کے قانون توڑا ہے تو بالکل کارروائی کریں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو۔ کہا عارف الوی خرابی بڑھنے سے روکنے کے بجائے فریق بن گئے۔ نون لیگ کی سیاست ہر قیمت پر اقتدار کی سیاست ہے۔ ہماری سیاست تھی ووٹ کو عزت دو، ان کی سیاست اقتدار ہے۔ نئی سیاسی جماعت پر جون میں کام مکمل ہو جائے گا۔ ہمدرد یونیورسٹی کے گولڈ میڈلسٹ ارتقاء سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان، اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی سمیت ارکان اسمبلی کی شرکت۔ مقتول انجینئر کے بھائی یہ بات کا کہنا ہے ارتقاء نے مزاحمت نہیں کی تھی، اس کے باوجود ڈاکوؤں نے قتل کر دیا۔ فائرنگ کے بعد ڈاکوؤں نے بھائی کی تلاشی بھی لی۔ ارتقاء گولڈ میڈلسٹ اور حافظ قرآن تھے، 1 سال قبل ہی شادی ہوئی تھی۔ شہر کراچی اس وقت بیار و مددگار ہے، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا 16واں سال ہے یہ حکومت کرتے ہوئے۔ ڈاکوؤں کے رحم کرم پر یہ شہر ہے، اس کے جوان بھی محفوظ نہیں۔ اس شہر کے جوانوں کو یہ اگر محفوظ نہیں کر سکتے، اس کے شہریوں کو محفوظ نہیں کر سکتے تو پھر یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ ہم پھر کیا کریں۔ امیر جماعت اسلامی کی ارتقاء کے گھر آمد اہل خانہ سے تعزیت کی۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں اسٹریٹ کرمنل نے ایک اور ہونہار نوجوان کو قتل کر دیا۔ پیپلز پارٹی کا 16واں سال ہے، کراچی کو لٹیروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ مسلح ادارے خاموش ہیں، شہر کے لوگ کیا کریں؟ اشرافیہ کا پروٹوکول ختم ہوگا، ان کے بچے اس طرح مارے جائیں گے تو پھر انہیں احساس ہوگا۔ عوام باہر نکلیں، کب تک ایسے بیٹھے رہیں گے؟
कराची के लोग क्या गाजर मूली की तरह कटने के लिए रह गए हैं? पहले सिर्फ शहरियों को लूटा जाता था, अब सफाक डाकू जान भी ले रहे हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, वजीर आला सिंध हर चीज़ का क्रेडिट लेते हैं, इसका भी लें। सिंध हुकूमत कच्चे के डाकुओं को यहाँ मुसल्लत करना चाहती है। अमन व अमान ठीक नहीं होगा तो अवाम हुक्मरानों को जूते ही मारेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची इमाम जफर खान कहते हैं, शहर के लोग कब तक तालिब इल्मों की लाशें उठाते रहेंगे? 5 माह के दौरान 80 से ज़ायद शहरी डकैती मुज़ाहमत पर जान से चले गए। लाड़काना के इलाके रत्तो डेरों में 2 ग्रुपों में खौफनाक लड़ाई, असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल, शहर मैदान जंग बन गया। जलबानी और वसीर बरादरी के मुसल्लह अफराद ने शहर के बीचों बीच गोलियां बरसाईं, एक दूसरे पर क्रैकर बम फेंके। जदीद असलहे के इस्तेमाल से शहर में खौफ व हरास, रेशम बाजार भी बंद हो गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। यूरोपीय कमीशन का PIA पर पाबंदी हटाने से इनकार। यूरोपीय यूनियन के 31 मई के इजलास में पाकिस्तान सिविल एविएशन से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश की गई। ज़राए का कहना है, पाकिस्तान सिविल एविएशन शोबा रेगुलेटरी की बदतरीन कारकर्दगी पाबंदी ख़त्म न होने का सबब बनी। फ़्लाइट स्टैंडर्ड शोबे में मतलूबा मयार से कम, फ़्लाइट इंस्पेक्टर्स की तैनाती भी बहाली में रुकावट। यूरोपीय मुल्कों में बहाली न होने से PIA की निजकारी पर मनफी असरात पड़ने का खदशा। यूरोपीय कमीशन ने CAA शोबा रेगुलेटरी के बड़े ओहदे पर काबिल अफसरान की तैनाती पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 जून को चीन के दौरे पर रवाना होंगे। एलामिये में कहा गया है, वज़ीर आज़म पहले मरहले में शेंज़न पहुंचेंगे। शेंज़न को इक़्तिसादी पावर हाउस की हैसियत हासिल है। वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान के लिए मुनफरिद नौयत का हामिल होगा। वज़ीर आज़म का दौरा चीन इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की जानिब अहम कदम है। पाकिस्तान को चीनी कंपनियों के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी को राग़िब करने का मौका मिलेगा। मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कराची में जमात इस्लामी का मिलियन मार्च। हाफिज़ नईम उर रहमान ने खिताब में कहा, कायदे आज़म ने इसराइल को मगरिब का नाजायज़ बच्चा कहा था। बच्चे इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग हमास की हिमायत क्यों नहीं करती? बानी PTI को जेल से बयान देना चाहिए कि वो हमास के साथ हैं। बानी PTI के बयान से पाकिस्तान के अवाम को हौसला मिलेगा। इसराइल इंसानियत की तज़लील कर रहा है। अमरीका इसराइल का सहूलतकार बना हुआ है। अमरीकी अवाम अमरीकी हुक्मरानों के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये जुर्रत हमास की वजह से मिली। मार्च में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डेटा लीक करने और उनके खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की मुल्तान में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। जावेद हाशमी फजलुर रहमान की ख्वाहिश पर उनके घर जाकर मिले। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। दोनों जमातों की राबता कमेटियों की 4 मुलाकातें बेनतीजा रहीं। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है, नून लीग पावर शेयरिंग फार्मूले से मुताल्लिक़ गैर संजीदा है। पीपल्स पार्टी को ज़िलाई सतह पर कायम कमेटियों में शामिल नहीं किया जा रहा। MPs नज़रअंदाज हो रही हैं, फंड्स जारी नहीं किए गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहर शदीद गर्मी की लपेट में। लिया और कोटद्दू में पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। फैसलाबाद, मुल्तान, DG खान, DI खान, जैकबाबाद, दादू, सिब्बी और तुरबत में दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, बहावलपुर और लाड़काना में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड। रहीम यार खान, बन्नू और सखर में 43 डिग्री। महकमा मौसमियात का कहना है, कराची में हीट वेव का जोर टूट गया। गर्मी की शिद्दत में कमी मुतवक्के। मुजफ्फराबाद शहर की दोनों जानिब जंगलात आग की लपेट में।
गुज़श्ता रोज से लगी आग से जंगलात जलकर राख हो गए। लोअर दीर के अमलोग दरख्त में जंगलात में लगी आग पर दूसरे रोज भी काबू नहीं पाया जा सका। कीमती दरख्त जल गए, जंगली हयात को भी खतरा। करक के जंगलात में भी आग का दूसरा रोज, 1.5 किलोमीटर तक के जंगलात जल गए। T20 वर्ल्ड कप में मेजबान वेस्ट इंडीज पहला मैच जीत गया। पापुआ न्यू गिनी का शानदार खेल, बॉलर्स मैच को 19वें ओवर तक ले गए। वेस्ट इंडीज ने 137 रन का हदफ 5 विकेटों पर पूरा किया। चेज के 42 रन। को होस्ट अमरीका का भी फातिहाना आगाज, कनाडा को 7 विकेट से शिकस्त। अमरीका ने 195 रन का हदफ 3 विकेट पर पूरा किया। जोन्स ने 40 गेंदों पर 94 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। आज पहला मैच नमीबिया और ओमान के दरमियान होगा। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल होंगे। T20 वर्ल्ड कप जीतकर कौम को खुशियां देना चाहता हूं। वर्ल्ड कप जीतना है तो एक होकर खेलना होगा और हर टीम को हराना होगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं अमेरिका में खेलना एक मुख्तलिफ तजर्बा और चैलेंज होगा। सिर्फ भारत का नहीं, तमाम मैच हमारे लिए अहमियत रखते हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना मैच जुमेरात को अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। पाक भारत टाकरा 9 जून को होगा। इन्होंने कहा था ना मैं YouTube बंद कर दूंगा अगर बाबर ने 3 छक्के मार दिए। फास्ट बॉलर पे सामने स्क्रीन पे बाबर आजम ही नहीं, दुनिया का कोई बैट्समैन भी नहीं मार सकता। पाकिस्तान के लिए मेरी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान फाइनल भी खेले, जीते भी, लेकिन जैसे क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। दुनिया का कोई बैटर फास्ट बॉलर को सीधे 3 छक्के नहीं मार सकता। बासित अली ने फिर चैलेंज कर दिया। हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल करते हुए पाकिस्तान के अलावा इंडिया, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड को फेवरेट करार दिया। कामरान अकमल ने कहा ख्वाहिश है पाकिस्तान जीते, लेकिन दीगर टीमें पाकिस्तान से अच्छी हैं। मेहमान फैसल कुरैशी ने कहा अपनी कौमी टीम पर इतनी शदीद तनकीद करना अच्छी बात नहीं, हार जीत खेल का हिस्सा है। प्रोग्राम में मुस्तफ़ा चौधरी बने जावेद मियादाद और आदि ने मजाक का तड़का लगाया। काउबॉय का अंदाज, कौमी टीम ने दिन बनाया खास। कौमी क्रिकेट स्टार्स की टैक्सिस में मौज मस्तियां, घुड़सवारी के मुकाबलों से महजूज हुए। अब्बास आफरीदी ने वीडियो बनाई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर पाकिस्तान टीम अगले बरस हज पर शाही मेहमान होगी। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी का वीडियो पैगाम, कौमी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ गो हूँ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर का दौरा। पाकिस्तानियों को पासपोर्ट के इजरा में ताखीर का नोटिस। ओवरसीज पाकिस्तानियों के अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज में जारी करने का हुक्म। वजीर दाखिला कहते हैं पॉलिसी का इत्तलाक दुनिया भर में मौजूद तमाम पाकिस्तानी मिशंस पर होगा। मुकर्ररा मुद्दत में पासपोर्ट जारी ना हुआ तो मुतालिका अफसरान के खिलाफ एक्शन लूंगा। वजीर दाखिला ने PSO ASP शहरबानों की सरबराही में मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया। वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत पाकिस्तानी हाई कमीशन में इजलास। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकने पार्लियामेंट खालिद महमूद की मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के फौरी हल के लिए इक़दामात पर बातचीत। पंजाब में 5 जून से प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। होटल्स और फूड पॉइंट्स पर प्लास्टिक बैग्स में खाना देने पर पाबंदी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पहले फेज़ में लाहौर के 6 जोन्स की तामीर व मरम्मत और डेवलपमेंट की जाएगी। हर जोन की अलहदा शनाख्त के लिए मखसूस कलर इस्तेमाल करने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। डेवलपमेंट प्लान में फराहमी व नकासी आब का निज़ाम, राबता सड़कों और पुख्ता गलियों की तामीर शामिल। वापस ले जाएंगे, यहाँ सस्ता नहीं बेचेंगे, बेच कर जाएंगे, अपने मर्जी से बेचेंगे। अल्लाह का एक 20 लगा रहे हैं ना, उतने में ये 10 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले दे देंगे, लेकिन जो ग्राहक आएगा 20 दिन पहले उसको नहीं देंगे उतने में। जानवर सर कम कर देंगे ऐसे तो पहले तो हम नहीं देंगे, पहले या बाद।
اور عید قرباں کی آمد، ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج گئیں، ایک سے بڑھ کر ایک جانور گاہکوں کو لبھانے لگے۔ کراچی میں ویکینڈ پر بیپاریوں کے سودے بازی میں تیزی آ گئی، لاہور کی شاہپور کانجرا منڈی میں بکروں کا رش۔